So guys, welcome. Can some of you write yes on the chat box if you can see me? Okay, great. So we are doing this repeat session on these three exams, which are Senior Administrative Officer with DRDO, Administrative Officer with GSI, and Deputy Director with ESIC. So as we know that UPSC has combined these three exams, and the exam date is on 17th of next month, 17th of July. So the objective of this session is कि हम last के एक महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, how we can prepare. Of course, we'll start with a broad disclaimer कि एक महीने में सारा सिलेबस तो हम पूरा नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता है. So how best we can utilize our time so that we get maximum ROI. So with that note, we'll start the session. So before I start, are there any specific questions from anyone? Can you write on the chat box anything which you want me to discuss? Just keep sharing on the chat box. Although I'll take all these queries at the end, but whatever you feel like, do share on the chat box. Okay. So guys, plan ये है कि first I'll tell you overall कि तुम्हें क्या करना है अगले एक महीने में, how overall तुम्हें क्या क्या करना है, and then we'll also go topic by topic. So in that topic by topic, I'll tell you कि क्या, so whatever resources we have given you, out of that, which can be skipped, आप क्या छोड़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा important है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है. So we'll also do that analysis topic by topic. Okay. So guys, शुरू करते हैं. It will take approximately 30-40 minutes. ठीक है. So this is the syllabus for ESIC, DD and Admin Officer exams for both DRDO and GSI, Geological Survey of India. Okay. So guys, first thing, earlier Admin Officer had a different syllabus. ठीक है. तो पहले Admin Officer का जो syllabus था, उसमें कुछ नए वर्ड्स आ गए. So Admin Officer was held previously also, पहले हुआ है कई बार UPSC के द्वारा. And then there was some syllabus. तो उसमें UPSC, because now UPSC has clubbed the exam, so UPSC has adopted syllabus of ESIC DD only, which was declared in advance. So अब admin officer के जो students हैं, they have to go through some extra keywords of the syllabus. Extra keyword क्या क्या है? That is marketing manager, that is marketing management, then accounting, then financial management, then public administration and development, or freedom movement. HRM OB still, I mean, earlier also it was there, so it is not new. So topics are marketing management, accounting and FM, public administration and development, and freedom movement. So guys, इन चार keywords के अंदर जो syllabus है और उसको admin officer वाले लोग कैसे करेंगे, so I'll also discuss that. तुम में से काफी लोग you are writing this on the chat box कि इन चार का हम क्या करेंगे, हमने पढ़ाई किया नहीं हुआ, and suddenly UPSC has surprised us with this syllabus. So I'll come to that also. I'll tell you what our plan is, how we'll support you guys for these 4 keywords which are new in syllabus for admin officer guys. ESIC DD वालों के लिए तो सब सेम है, right? They know कि उनको जो था. So Devesh is asking whether we have to study labor law. No, you don't have to study labor law now. So guys, admin officer के syllabus में जो पहले कीवर्ड थे उसमें से कुछ अब हट भी गया है. So क्या क्या हट गया है? आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपको लेबर लॉज, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, ये सब आपको अब नहीं पढ़ना है. This has been taken away from your syllabus. ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर भी अब हट चुका है, वो नहीं पढ़ना है. ठीक है. So now this is the syllabus जो अभी आपके सामने. And of course इसमें एक और कीवर्ड है जो यहाँ नहीं लिखा है, वो है पार्ट है जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश तो है ही. ठीक है. उसके अलावा ये सारे कीवर्ड है. So guys, शुरू करते हैं एक एक करके. So what is the plan? तो सबसे पहले गाइस क्या करना है कि ये बात we have to understand this thing कि अभी हम सारा सिलेबस नहीं कर पाएंगे. We cannot go through everything in last 1 month. ठीक है. तो अभी तुम लोगों को थोड़ा प्लान करना है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ और मेरी क्या वीकनेसेस हैं, एंड वी हैव टू
यू हैव टू डिसाइड दैट। अब वो तुम लोग कैसे करोगे? नाउ दैट इज बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड। जैसे तुम में से कुछ लोग इतने अच्छे होंगे बिकॉज यू हैव बीन राइटिंग सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि उन्हें एप्टीट्यूड या इंग्लिश पढ़ने का अब जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी सिविल सर्विसेज या सिविल एग्जाम का तैयारी किया, तो इंडियन पॉलिटी या ये सब उनको पहले से आता है, तो दे कैन स्किप दैट। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक है जो मैं कर सकता हूँ और कौन कौन सा है जो मैं नहीं कर सकता, जो जिसका मेरा बैकग्राउंड नहीं है। सो डिसाइड ऑन दैट। अब सारा नहीं होगा, एक जो भी आपके 35 दिन बचे हैं 35 डेज में, अभी तुम लोग सारा सिलेबस दोबारा से तुम लोग नहीं कर पाओगे। एंड अगेन गाइज, क्योंकि तुम में से लोग काफी ज्यादा करते रहते हो, डू नॉट ट्राई टू, ऑल्दो सिर्फ 35 दिन बचे हैं, पर कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा ढूंढने की कोशिश मत करना, ये काम नहीं करता है। एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि क्या तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। सो कुछ लोग क्या करते हैं, सो दे गो ऑन द यूट्यूब, और यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। एंड यूट्यूब पे जाके हम लोग क्या करते हैं, फिर देन वी सर्च। हम लोग क्या सर्च करते हैं, जैसे कि अगर ESIC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ वीडियोस तुम्हारे सामने आ जाएगा, जैसे कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या ESIC DD पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जैसे ये कोई वीडियो है, अब जो भी आई वोंट नेम देम, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये सब नहीं करना, इससे कभी भी एग्जाम पास नहीं होगा। दिस विल नेवर वर्क। इससे अच्छा क्या है कि तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सिलेबस में जो चैप्टर दिया है, मे बी प्राइसिंग डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कम से कम एक टॉपिक पूरा अच्छे से कर लो, हो सकता है उससे तुम्हारा एक सवाल ठीक हो जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल जो ढूंढ के हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, दिस नेवर 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 वर्क्स। और स्पेशली किसी भी, सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला थ्योरी काम नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब काम करता है, जब हम कॉलेज से पेपर लेते हैं। याद है तुम लोगों को कि 8 सवाल होता है, 8 में से कोई 5 करना है, पहला कंपलसरी है। तो जब उस मोड के हम लोग पेपर देते हैं, तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम करता है इन दैट सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी ये चीज काम नहीं करेगी। वी हैव बीन सीइंग इट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। इसलिए एट ह्यूमन टाइटस हम कभी भी ये सब बात नहीं करते कि हम तुम्हें 1 घंटे में करा देंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल, क्योंकि वो उससे सवाल नहीं आते हैं। और फिर भी अगर तुम लोग को मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तुम एक छोटा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तुम लोग क्या सर्च करो, EPFO इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब EPFO का पेपर कब हुआ, सितंबर 2021 में हुआ। तो इनमें से कुछ ऐसी वीडियो तुम देख लेना कि जो सितंबर 2021 की होंगी खूब सारी, और पेपर भी तुम्हारे पास है, आके तुम मिला लेना और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं काम करे। शायद इसमें से एक सवाल आ भी जाए कहीं से, लेकिन उस एक सवाल से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, जब हम उस सिलेबस को पूरा ही करेंगे। सो ये सब बता के व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश नहीं करना, वो काम नहीं करता है। इट नेवर वर्क्स इन एनी ऑब्जेक्टिव पेपर, इट नेवर वर्क्स स्पेशली इन एनी UPSC एग्जाम। ट्रेडिशनली सिलेबस ही खत्म करना है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके। यस हाँ, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ओवरऑल स्ट्रेटजी के लिए। तुम में से कुछ लोग वरीड हो अबाउट द एग्जाम डे, कि एग्जाम डे को कैसे मुझे करना है, एग्जाम डे को मुझे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा कम करना है। तो इस सब के लिए हम एक दूसरा वीडियो करेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग उसको डाल देंगे, एंड विल टेल यू कैसे करना है। लेकिन अभी उसके बारे में एक छोटा सा बात तुम्हें बता देता हूँ, वो ये है कि जो आपके पेपर का पैटर्न क्या है। सो यू विल गेट 120 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 15 से 20 सवाल इंग्लिश के होंगे, बाकी 5 7 10 ऐसे सवाल होंगे। सो गाइस, आपके पेपर में अगर 15 सवाल एप्टीट्यूड के होंगे, एट मैक्स 15 होंगे, या 10 भी हो सकते हैं, तो ये 10-15 सवाल ही है विच विल टेक सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, या अकाउंटिंग का 1-2 सवाल आ सकता है कोई बीच में। उसके अलावा सारा पेपर थ्योरेटिकल है। मतलब 120 में से अप्रोक्सीमेटली 105, 106, 107 सवाल थ्योरेटिकल है। हर एक थ्योरेटिकल सवाल को तुम्हें एकदम देख के पता चलता है आता है नहीं आता है, ठीक है, और वो आधे मिनट में हो जाता है। मतलब
जो रिमेनिंग सवाल है वो तुम अप्रोक्सीमेटली 50-60 मिनट में आराम से कर सकते हो, और बाकी 1 घंटा में तुम अपने मैथ्स के सवाल कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस वाले एग्जाम के लिए डू नॉट वरी टू मच अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तुम अगर इस पेपर में फेल होते हो, तुम इसलिए नहीं होगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए। अगर तुम फेल हो गए तो इस कारण हो गए बिकॉज यू डिड नॉट नो, क्योंकि हमें आता नहीं था। रिमेंबर दैट। सो डोंट वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ इतना सीखना है कि मैं किसी भी एक सवाल पे डिसप्रपोर्शनेटली ज्यादा टाइम नहीं लगा दूं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं स्टक होकर खड़ा हो गया और मैं आगे बढ़ नहीं पाया, वो चीज सीखनी है। उसके लिए एनीवे हम लोगों ने तुम्हें 8 मॉक टेस्ट दिया है विच आर फ्रेशली मेड, जो कि हमने इसी एग्जाम के लिए बनाया है, एडमिन ऑफिसर या PSI-CDT के लिए। तो उनमें से आप कोई भी 3, 4, 5 टेस्ट दे सकते हो, दैट विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 8 के 8 करने का भी जरूरत नहीं है, 3-4 कर लोगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अगेन गाइस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक टेस्ट इज कि जो एग्जाम वाला माहौल है उसको मैं रेप्लिकेट कर लूं। मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मॉक टेस्ट में जो सवाल किया पेपर में आएगा, इसलिए 3-4 टेस्ट ही करना काफी है, उतने से ही हो जाएगा। बस छोटी सी बात क्या सीखना है कि मुझे सीखना है कि अगर सवाल मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, और कैसे आई मेक श्योर कि आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, नहीं कि मेरा पेपर ही पूरा नहीं है। बस इतना ही सीखना है, एंड इसके अलावा कोई मॉक टेस्ट है कुछ विशेष लर्निंग नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके कि करना क्या है हमें। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन यूनियन। पहली बात, इंडियन यूनियन क्या है? इंडियन यूनियन इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी, और इंडियन यूनियन इज नथिंग बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो 1947 के अराउंड जो डेवलपमेंट्स हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, प्लस उसके बाद वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो सब हुआ, और कुछ चीजें पहले की भी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडियन चार्टर एक्ट 1813 है, वो सब है। तो ये सब मिला के ही इंडियन यूनियन बनता है। इंडियन यूनियन में अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा। तो जो हम इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं वही इंडियन यूनियन है, एंड देयर इज नथिंग अदर देन दैट व्हिच इज देयर इन द टॉपिक ऑफ इंडियन यूनियन। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन यूनियन। अब गाइस, इंडियन यूनियन में तुम्हें करना क्या है? So if you are enrolled with us, तो तुम क्या कर सकते हो? हमने तुम्हें एक बुकलेट दिया है, एक ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिया फॉर द टॉपिक ऑफ इंडियन यूनियन। तुम इन दोनों में से कोई एक कर लो, दैट विल बी ओके। अगेन गाइस, आई विल रिपीट, दोनों मत करो, सिर्फ टाइम 1 महीने का बचा है। बुकलेट, प्रिंटेड बुकलेट या ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में से तुम कोई एक कर लो। इफ यू वांट टू आस्क मी कि व्हिच इज मोर बेटर, सो तुम ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक कर लो, बट मेक श्योर गाइस, जब मैं ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक बोलता हूँ, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू फाइंड द आंसर, हर एक क्वेश्चन के पीछे जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा है वो भी पढ़ना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंडियन यूनियन। अनदर थिंग गाइस, अगर तुम लोग इफ यू चूज टू रीड द बुकलेट या कंटेंट तुम लोग पढ़ने की कोशिश करते हो, सो ऑब्वियसली द बेस्ट नोन बुक फॉर इंडियन पॉलिटी इज लक्ष्मीकांत, बट फॉर दिस एग्जाम तुम्हें वो भी नहीं पढ़ना है, जो हम लोगों ने दिया वही करना है। We have specially designed it for recruitment exam, और उससे and we have seen that कि उसमें जो coverage किस तरह का होता है। So even if you have the option, make sure you go through our booklet, our printed booklet only. With my respect to लक्ष्मीकांत, ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी बुकलेट थोड़ा हमने फैक्चुअल बनाया, जैसा कि रिक्रूटमेंट एग्जाम में सवाल आता है। और दूसरा, हमारी बुक से 150 पेजेस में आपका पूरा कंटेंट, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, न कि लक्ष्मीकांत में जो भी 500-600 पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद ये टॉपिक आते हैं जो मैनेजमेंट के हैं, HR, OB, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और FM। सो गाइस, OB सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन OB पढ़ना है, क्योंकि OB इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ HR ओनली। और पहले जो सवाल आए हैं जिसमें HRM सिलेबस लिखा है, उसमें OB के सवाल भी आते हैं, जैसे मोटिवेशन थ्योरी, चेंज मैनेजमेंट और ये सब चीजें भी आते हैं, इसलिए हमने इसको HRM एंड OB लिख दिया है। सो गाइस, अब इन जो ये मैनेजमेंट टॉपिक है, इनके लिए तुम्हें क्या करना है? ऑफ कोर्स, इफ यू गो थ्रू आवर बुकलेट्स, दे विल गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव 100% कवरेज, और उससे बाहर आपको छूने का कुछ भी नीड नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू समथिंग एल्स, क्योंकि अभी एग्जाम में 1 महीना ही बचा है, ठीक है। और सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि
आप बुकलेट्स की बजाय, अच्छा बुकलेट में क्या है, जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग का मैं एग्जांपल लेते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है? कोटलर है। सो कोटलर एक 600 पेजेस की बुक है, हमने उसको कंसाइज करके 150 पेजेस का बना दिया है ताकि इस एग्जाम के लिए हमारे सारे कीवर्ड या वो सब कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब टाइम इतना कम है उसको करने के लिए, सो व्हाट माय सजेशन इज कि गो फॉर रिकॉर्डेड वीडियोस। सो रिकॉर्डेड वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया है, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जांपल लिया कि हमारे टीचर ना एक कुछ विशेष तरीके से पढ़ाते हैं। विशेष क्या है कि वी गो विद कीवर्ड बेस्ड लर्निंग, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमें लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना है सब्जेक्टिव की तरह। सो अवर फोकस इज ऑन द कीवर्ड बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सो कीवर्ड बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है आ, कि पूरा प्राइसिंग डिसीजन का चैप्टर है, उसमें से जो जो सवाल बन सकते हैं, जो जो कीवर्ड है, उसके बेस पे ही टीचर ने क्लास में पढ़ाया, ठीक है। सो इन अ वे अगर बुकलेट से आपको एक चैप्टर को पढ़ने और समझने में 6 घंटे लगते हैं, तो शायद रिकॉर्डेड वीडियो से वो 1 घंटे में ही हो जाएगा। सो दिस द फर्स्ट रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू गो फॉर रिकॉर्डेड वीडियो। सेकंड रीजन, अकाउंटिंग, अच्छा मार्केटिंग एचआर में भी थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक है। अकाउंटिंग और एफएम ऐसे टॉपिक है कि जहां अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको बुक से पढ़ के समझने में भी काफी ज्यादा समय लगेगा। सो ऑल्दो फ्रॉम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से सब इसमें कवर्ड है, बुकलेट हैव एवरीथिंग, उसके अलावा कहीं कुछ होने का नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पीड अप करना है, अगर आपको थोड़ा चीजों को तेज करना है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप रिकॉर्डेड वीडियो ऑप्शन में जाइए फॉर दीज मैनेजमेंट टॉपिक्स व्हिच आर एचआर, ओबी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड एफएम। योर प्रिपरेशन आपका उससे स्पीड अप होगा। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्या करना है, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो में तो गो थ्रू दोज वीडियोस। और हमने क्या किया कि जो क्लास में जो सवाल कराए हैं उसमें रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के, यूपीएससी के और यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के जैसे सीसेट, इनको मिला के हमने क्लास में सवाल करा दिया। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो के साथ जाते हो तो सिर्फ क्लास में वो जो सवाल हम लोगों ने कराए वो अच्छे से कर लो, उतना ही करना, काफी तो नहीं कहूंगा लेकिन उतना ही करने से कम 15 में से आपके 11-12 सवाल हो जाएंगे। अगर फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो से नहीं पढ़ना है तो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर जो एक सेक्शन है ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने बात किया है, वहां क्या, जहां यूपीएससी के सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के सवाल है ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। अगेन रिपीट, यूपीएससी के जो बिल्कुल सेम डिफिकल्टी लेवल होता है सबका। सी अगेन गाइस, तुम्हें एक बात और बताता हूँ क्योंकि हम लोग काफी एनालाइज करते हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सी सेट है या सीआईएसएफ, सीएपीएफ, रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं जैसे एएलसी, ईपीएफओ, एपीएफसी या ये सब, इन सारे एग्जाम्स का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली सेम होता है एक्सेप्ट टू एग्जाम्स, वो एनडीए और सीडीएस। एनडीए और सीडीएस में थोड़ा लेवल डिफरेंट होता है, सीडीएस में थोड़ा हायर होता है, जहाँ तुम्हारा ज्योमेट्री वगैरह वो सब भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी ज्यादा आता है। अदर देन दीज टू एग्जाम्स, बाकी सारे एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होता है। सी सेट का भी, जो यूपीएससी सी सेट का सिलेबस है वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम है जो तुम लोग करते हो। सो व्हाट माय सजेशन इज कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, ये कौन कौन से, सी सेट, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एएलसी, एडमिन ऑफिसर, एपीएफसी, ईएसआईसीडीडी, स्टोर ऑफिसर, इन सभी के आप ये जितने एग्जाम मैंने बताए हैं इन सभी के तुम लोग सवाल जो पिछले सालों के आए हैं वो कर लो। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां जा कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिगर इट आउट फ्रॉम समवेयर। बट बेस्ट इज आप रिकॉर्डेड वीडियो में आप वो वाले क्लास कर लो, आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ इट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और कुछ मत करो अभी, यूपीएससी के इन सारे एग्जाम्स के पिछले सालों के सवाल जितने भी कर पाओ, हमारी बुक भी नहीं पढ़नी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए इस टाइम हमारी प्रिंटेड बुकलेट नहीं करना है। आगे आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्योंकि पतली काफी बुक है, इट्स नॉट वेरी थिक और बड़े लिमिटेड सवाल हैं, लेकिन इससे सवाल आते हैं एंड दे आर डूएबल आल्सो। सो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमने जो बुकलेट में दिया है और जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे दिया है दोनों ही करना है। वीडियो को यू कैन स्किप, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बुकलेट में जो सवाल दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए वो तुम्हें करना है।
नेक्स्ट टॉपिक जनरल साइंस। तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल साइंस सिलेबस है, उसमें इंसिडेंटली हम सबको लगता है कि एनसीईआरटी की 10th तक की बुक से आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% सवाल 11th-12th की बुक से भी आते हैं। सो उस चीज को ध्यान में रख के ही हमने अच्छे से अपना बुकलेट बनाया हुआ है जनरल साइंस का। गो थ्रू दैट, डू नॉट टच एनीथिंग एल्स। गिवन अभी ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जनरल साइंस के लिए रहने देना, मत करना, अभी टाइम नहीं है। अभी जनरल साइंस के लिए सिर्फ जो प्रिंटेड बुकलेट है, जो पतली पतली दो है, वो कर लो, बट मेक श्योर कि उसको तुम अच्छे से अंडरलाइन करके उसको अच्छे से कर लो। अगर एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लेना, अब क्वेश्चन बैंक करना, इट्स ओके, स्किप दैट नाउ। लेकिन जो प्रिंटेड बुकलेट है वो कर लेना, वीडियो भी मत देखना भी, डोंट गो फॉर दैट। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट। रादर फैक्ट इज कि वी कैन नॉट डिफाइन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है। अपने आप में एक मैनेजमेंट का पूरा ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट है। सो गाइस, व्हाट आवर सजेशन इज, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, स्किप दैट नाउ। कुछ भी नहीं करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। हाउएवर, एक चीज और भी याद रखना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे मोटिवेशन थ्योरी है, वो तुम्हारा ओबी में पहले ही कवर हो चुका है। ठीक इसी तरह काफी सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन पॉलिटी में भी कवर हो जाता है। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ और करने की कोशिश मत करना, लीव दैट, अभी वो नहीं करना है। डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो वी हैव गिवन यू अ नाइस बुकलेट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आप वो जो बुकलेट है जिसमें पूरा स्कीम्स और बड़े अच्छे से बना हुआ है, अपडेटेड भी है, उसको थोड़ा जरूर पढ़ लेना अच्छे से। इसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके अलावा कुछ और करने का नीड नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट अगेन, जनरली जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं, हमने जितने भी एनालाइज किए हैं, फ्रीडम मूवमेंट या इंडियन हिस्ट्री का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आता है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू फिगर आउट। सो फ्रीडम मूवमेंट के लिए हमारी बुकलेट पढ़ लो, वेरी गुड। तुम्हारे पास कोई बुक है, स्पेक्ट्रम है, कुछ है, वो भी पढ़ लो, दे आर आल्सो इक्वली गुड इसमें, क्योंकि आरओआई इज एनीवे इज नॉट सेम एज अदर सब्जेक्ट। कुछ सवाल तुम कर पाओगे, कुछ उसमें से नहीं आएंगे। हर बार कुछ ऐसे सवाल जरूर आएंगे यूपीएससी के फ्रीडम मूवमेंट वाले टॉपिक में, जो हम लोग नहीं सोच पाएंगे कि वो कहाँ से आया है, कौन सी बुक से आया है। तो कमिंग बैक, फ्रीडम मूवमेंट में क्या करना है कि हमारी बुकलेट पढ़ लो, तुम्हारे पास कोई अपनी बुक हिस्ट्री की अच्छी वो पढ़ लो, एवरी बुक इज इक्वली गुड। लेकिन अब ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक नहीं करना, फ्रीडम मूवमेंट का ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक अब नहीं करना, दैट इज ओके, लीव दैट। बुक पढ़ लो अपना अच्छे से, जो भी पढ़ सकते हो। लास्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या करना है? सबसे पहला सवाल, करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है? करंट अफेयर हमें पढ़ना है जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ, जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि 2021 में हुआ और फिर 22 में फिर हो चुका है, तो उसको तुम 21 वाला इग्नोर कर देना। जैसे कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे 2021 में भी हुआ, फिर 22 में भी हुआ, तो 21 वाला स्किप कर देना, सिर्फ 22 वाला पढ़ लेना। अदर देन दैट 2021 या 22 के तुम सारे जो करंट अफेयर वो कर लेना। जो हम लोगों ने तुम्हें बुकलेट दिया है, दैट इज वेरी नाइसली डन। इनफैक्ट ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 सवाल आए थे करंट अफेयर के। उस 15 में से 8 सवाल हमारे बुकलेट में कवर्ड थे, जो कि एनीवे काफी कंसाइज और टू द पॉइंट है। 15 में से 8, which is a very good number, especially for a topic like current affairs. So guys, having said that, करंट अफेयर के लिए और कुछ नहीं छूना, अभी कोई न्यूज़पेपर, कोई दूसरा बुक कुछ शुरू मत कर देना। हमने जो दिया है काफी फैक्चुअल है, टू द पॉइंट है, इसलिए एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जस्ट गो थ्रू दोज बुकलेट्स ऑफ करंट अफेयर्स। कब से कब तक का कंटेंट करना है? जनवरी 21 से मई 2022 तक का हमें कंटेंट करना है करंट अफेयर्स का। अनदर थिंग गाइज, हैव दिस कॉन्फिडेंस। हम जो आपको एडवाइस कर रहे हैं काफी सोच समझ के कर रहे हैं। ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें 120 में से 105 सवाल हमारे कोर्स से आए थे, which is a very high number। 120 में से 105। अच्छा, किसी ने पूछा आरटीआई मैंने स्किप कर दिया। सो गाइस, आरटीआई भी सिलेबस में है। आरटीआई ऐसा टॉपिक है जिससे कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए।
इंडियन पॉलिटी की बुक में हमने उसको डाला हुआ है। सो मुश्किल से 5-6 पेजेस का कंटेंट है, तो आरटीआई का वो 5-6 पेजेस का कंटेंट प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक के सवाल दोनों ही करना है। आरटीआई का हमें एक भी सवाल गलत नहीं करना है किसी भी हालत में। कमिंग बैक, अच्छा हाँ बचा क्या, इंग्लिश, यस पार्ट जनरल इंग्लिश बचा है, ठीक है। सो गाइस जनरल इंग्लिश में क्या करना है, सो जनरल इंग्लिश में यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में 9 तरह के सवाल पूछते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वो 9 क्या है, हम लोगों ने उसमें दिया हुआ हमारी प्रिंटेड बुकलेट में, अदरवाइज तुम लोग एक काम भी कर सकते हो, मैंने जो तुम्हें बताया है। तो यू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस और उसके बाद आप डिप्टी डायरेक्टर ईएसआईसी वाले पेज पे चले जाइए, डिप्टी डायरेक्टर ईएसआईसी वाले पेज पे, ठीक है। इस पेज के अगर नीचे आओगे तो यहाँ ना कुछ वीडियोस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, यू कैन सी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वीडियो आप चला के देख सकते हो कि उस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ाई करना है, ठीक है। जैसे कि जनरल इंग्लिश में क्या करना है, तो कौन से 9 तरह के सवाल है जो तुम्हें करने हैं। सो दिस इज वेयर यू कैन गो। कमिंग बैक, जनरल इंग्लिश में क्या करना है, वो जो 9 तरह के सवाल है वही कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। सो इफ यू आर एनरोल्ड विद अस, तो जो इंग्लिश की जनरल इंग्लिश की बुकलेट है वो आप लोगों ऑफ कोर्स उसमें आप कर लीजिए, और प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन याद रखना है अभी जस्ट फोकस ऑन ग्रामेटिकल वाले सवाल, जैसे कि स्पॉट द एरर, सेंटेंस करेक्शन, सिर्फ उस पे ही अभी फोकस रखना है। अभी जो वोकैब बेस्ड सवाल होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम और वो सब होता है, उसको अब नहीं करना है। अब वोकैब आप बिल्ड नहीं कर पाओगे तो उन सबको छोड़ दीजिए, एग्जाम में जो होगा तुम लोग उतना कर लोगे, उसके अलावा उन सारे सवालों को तुम्हें नहीं करना है। अभी सिर्फ जो उसमें 3-4 टॉपिक होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि आई टेल यू, sentence correction, spotting the error, then phrasal verbs, then question tags, ये 4-5 कीवर्ड है which are not vocab based। 9 में से 4-5 है, सिर्फ ये वाले ही सवाल कर लो, इसी से तुम्हारे कुछ सवाल इससे काफी सारे तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। Having said that, have this confidence कि जब ईपीएफओ का पेपर हुआ था उसमें हमने देखा था, एंड वी अडॉप्टेड द सेम स्ट्रेटजी जो हम तुम लोगों को बता रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी मतलब जो कंटेंट हमने तुम लोगों को दिया है उसमें लोगों के 120 में से 105 से करीब सवाल ठीक हो गए थे, नोट ठीक हो गए थे, सॉरी, इतने सवाल आ गए थे एग्जाम में, क्योंकि हम एक एनालिसिस करते हैं एग्जाम के बाद कितने सवाल हमारे कोर्स से आए। इस तरह एएलसी हुआ था 2017, उसमें भी ऐसा हुआ था, आउट ऑफ आई डोंट नो 120 कितना 90 समथिंग सवाल उसमें से आ गया था 2017 में जो हुआ था। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इवन बेटर, सो हैव दिस कॉन्फिडेंस। जो रिसोर्सेज हम लोगों ने दिए हैं इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं छूना है। तो डाउट है तो हमारी टीम से बात कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे, और कुछ भी अभी नहीं छूना है। जो हमने दिया है उसी को एफिशिएंटली लिवरेज करना है, उसी में से तो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस कि इतना ही काफी है, इसके अलावा कुछ और करने का नीड नहीं है। देन एनीथिंग एल्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू बिफोर आई टेक अप योर क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, अब बात आते हैं कि जो लोग एडमिन ऑफिसर के उसमें एनरोल्ड थे उन लोगों को क्या करना है। अच्छा, अनदर थिंग गाइस, हम लोग अगले 2-3 दिन में एक दो वीडियो और पब्लिश करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एचआरएम, ओपी, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम, जो ये वाले टॉपिक्स हैं, इनमें क्या क्या मस्ट करना और क्या क्या तुम छोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स याद रखना कि जब हम बात करते हैं को छोड़ सकते हैं, दैट कम्स विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिस्क, उसमें सवाल आ सकता है, बट बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी नो विल गाइड यू। अगले 2-3 दिन के अंदर ही हम मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनकी हम कुछ वीडियोस हम डालेंगे कि क्या क्या डेफिनेटली करना है, क्या क्या छोड़ सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अगर तुम एफएम का टॉपिक लेते हो, अच्छा बिफोर दैट जो ये पूरा सिलेबस है इसमें ना 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसपे आज तक यूपीएससी ने कभी सवाल पूछा ही नहीं है, मतलब सॉरी वो आज तक इस सिलेबस में थे ही नहीं। वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से यूपीएससी ने एटलीस्ट पिछले 10 साल में कोई ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट ही नहीं किया है। तो हमें इनका बाउंड्री, हमें इनका आइडिया कोई हम पिछले पेपर से हम लोग गेस नहीं कर पाते। सो बेस्ड ऑन व्हाटएवर बेस्ट विजडम वी हैव, विल एडवाइज यू विद दिस डिस्क्लेमर कि इन 3 सब्जेक्ट का तो कोई आइडिया ही नहीं है पहले कि यूपीएससी के दिमाग में सिलेबस क्या है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट विल डू कि जो किसी भी सब्जेक्ट के कोर टॉपिक है, विल एडवाइज यू टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एफएम की बात करते हो
तो एफएम में हम लोग क्या हमें पढ़ना ही पढ़ना है एफएम में। सो वी स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर आपका कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये टॉपिक तो करने ही करने हैं, छोड़ क्या सकते हो? प्रोबेबली हम डेरिवेटिव हम छोड़ सकते हैं, प्रोबेबली हम इंटरनेशनल एफएम हम लोग छोड़ सकते हैं, प्रोबेबली हम लीज फाइनेंसिंग हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ऐसे हर एक काम एक वीडियो करेंगे, ऑफ कोर्स विद दिस डिस्क्लेमर कि दिस हैज सम एलिमेंट ऑफ रिस्क, लेकिन जो कोर टॉपिक है, कंसीडरिंग कि हमारे पास कितना टाइम है, तो वो ही तुम लोग कर लोगे, सो दैट विल बी गुड एनफ फॉर यू। अब जो लोग हैं एडमिन ऑफिसर वाले, जिन पे एकदम मतलब एकदम कुछ जिनके लिए एकदम ये 4 टॉपिक नए आ गए, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रीडम मूवमेंट। सो तुम लोगों के लिए हमने क्या प्लान किया है कि विल गिव यू एक्सेस टू रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, एंड विल डू फॉर यू गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे आप अपना सारा कोर्स खत्म कर सकते हो, दैट विल आल्सो बिकम फास्टर फॉर यू। सो जो एडमिन ऑफिसर के कोर्स में जो लोग एनरोल्ड हैं, for that will give you access to recorded videos of all these topics जो कि तुम्हारे सिलेबस में एकदम नए आ गए हैं। But again guys, plan it. Of course it's a very uncomfortable situation कि एग्जाम से 1 महीना पहले तुम्हें पूरा मैनेजमेंट पढ़ने को बोल दिया, it's very unfortunate also। लेकिन ये भी याद रखना कि तुम्हें नहीं आता तो बाकियों को भी नहीं आता। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम्हें सारा ठीक नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बाकी लोगों से ठीक करना है। You have to score more than others. तुम्हें सब 90% नहीं लेना, तुम्हें बस बाकी लोगों को ज्यादा लेना है। So don't worry, everybody is in same situation and they should take care of it. Okay. Okay. So guys, are there any questions? And just write on the chat box, I want to speak. We'll give you mic and then you can speak up. Yes, come on. Okay, let us start with Uttam Sharma. Yes, Uttam, speak up. Bolo. उत्तम जल्दी बोलो, तुम्हारे ग्रीन कलर का माइक है, क्लिक ऑन दैट एंड स्पीक अप। हेलो, यस उत्तम बोलो। हाँ हेलो, हाँ हाँ उत्तम ऑडिबल बोलो। है? यस हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैंने एओ जीएसआई के लिए कोर्स में रजिस्टर किया था, बट अभी तो मतलब सिलेबस चेंज हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें उसमें ऐड ऑन हो गई है सिलेबस में। तो वीडियोस तो सर अपडेट हो गए हैं, बट इसके बुकलेट्स हमें अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे सर? सो अगेन गाइस, इट्स योर चॉइस। अगर तुम कहोगे हम तुम्हें बुकलेट भेज देंगे, सो वी हैव टेकन अ स्टेप ताकि तुम्हारा स्पीड अप हो जाए। इफ यू वांट वी कैन सेंड यू दैट। गेट इन टच विद अस। सो गाइस, इट्स योर चॉइस। इट इज योर चॉइस। It is your choice, guys. We are trying to do something which we think is better for you. If you want, we'll give that to you. तो मींस ये सर एडिशनल कॉस्ट उसका होगा या फिर that will be included in the same package? Free of cost, guys. Don't worry. For admin तो उसके लिए guys, we won't charge you anything more. We'll take care of you. Don't worry. Yeah. तो for booklet sir, we will have to mail to Hemant Paredes or? हाँ आप हाँ लिख दीजिए, बिल्कुल। हाँ my team भेज देगा। Okay. Next. Thank you sir. Thank you. Okay, Arjun Dagar, speak up. सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी अर्जुन बोलिए। सर मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कल परसों नोटिफिकेशन आया कि 300 मार्क्स का टेंटेटिव टोटल रहेगा, जिसमें हमारी ये असम्पशन या फिर हमारा जो पुराना जो क्वेश्चन पेपर हमने देख के निकाला कि 120 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। ठीक है। उसमें सर 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, यानी कि 50 नंबर इंग्लिश, और 250 नंबर का बाकी इन 10 टॉपिक से होगा। ठीक है सर, मेरा इसमें बस 2 क्वेरी है कि एक तो इसमें सर एबीसी एनालिसिस अगर आप हमें प्रोवाइड करा दें कि भाई जो 250 मार्क्स है सर, एक एबीसी मतलब प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट अगर हमको मिल जाए कि 250 मार्क्स है, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लमसम एस्टिमेशन मतलब हमारा क्या रहेगा? अर्जुन अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा सवाल। सो गाइस, एंड इसको काफी ध्यान से सभी लोगों को सुनना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछा है, ठीक है। सो गाइस, 2 बातें हमें समझनी है। पहली बात तो कि जो यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है ना, उसमें हम इस अजम्पशन के साथ नहीं जा सकते कि इससे ज्यादा सवाल आते हैं, इससे कम आते हैं फॉर अ सेम एग्जाम, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम मान लो एएलसी का है,
वो 2000 मान लो 15 में हुआ, फिर वो 17 में हुआ। एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एग्जाम में उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि जनरल साइंस के 5 सवाल आए, अगले में 15 आए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें वेरिएशन होता है इवन विद इन सेम एग्जाम, ठीक है। तो इस अजम्पशन के साथ नहीं जाना। तुम्हारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के 15 सवाल भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, इट कीप्स चेंजिंग। और हमने इसी चीज को काफी डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें ना काफी अच्छे से हमने एनालाइज किया है इससे कितने सवाल आते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो का समरी एक ही है कि डू नॉट गो विद एनी अजम्पशन, पेपर में कुछ भी आ सकता है। दूसरी बात अर्जुन सर, एक मेरा जस्ट एक इसमें था सर इनपुट। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर दिया। हाँ बोलिए प्लीज। सर, एक हम आउट ऑफ 300 मार्क्स हम अपने दिमाग में या अपने टारगेट में हम किस रेंज में टारगेट करके जाएं कि भाई इस रेंज में इफ आई एम स्कोरिंग तो ठीक है, आई एम सेफ। अच्छा, मैं इसमें भी आता हूँ। आई नो दिस आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर पहले वाली बात खत्म कर लेता हूँ, देन आई विल कम टू दिस आल्सो। जी सर। हम लोगों ने किया है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसी दुनिया में ही हम लोग जीते हैं कि हमें वी लुक फॉर दीज डेटा पॉइंट्स फ्रॉम समवेयर, ओके। बट लाइफ में ये भी याद रखना कि कई बार नहीं पता है, ये भी एक्सेप्ट करना इज अ गुड आइडिया, रादर देन कि वेग कुछ रैंडम हम लोग पता कर लें, ठीक है। कमिंग बैक, सो आई गो टू ओरिजिनल क्वेश्चन नाउ सर। सबसे पहले सो गाइस एक चीज और भी हुई है कि जो ESICDD का एग्जाम जो अब की बार हुआ है, उसमें जो सिलेबस के कीवर्ड है, यूजुअली यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता था, रिक्रूटमेंट में सिलेबस में 7 से 8 कीवर्ड होते थे। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक टॉपिक के 10 या 15 सवाल आते थे, इंग्लिश के 20 आते थे, ठीक है। लेकिन इस वाले पेपर में क्या हुआ है कि तुम्हारे जो कीवर्ड ही 11 से 12 है, विच इज अ यूनिक थिंग, विच इज अ न्यू थिंग। अगर 11 से 12 सवाल है और 120 सवाल है, अगर इंग्लिश के 20 आ जाएंगे तो यूजुअली हर बार से इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं, ठीक है, हर एक पेपर में कंसिस्टेंटली। लेकिन अब की बार शायद उसमें भी चेंज हो जाए, क्योंकि 11 से 12 सवाल है, अगर 20 सवाल भी हमने उसमें से हटा दिए 120 में से, तो 11 से 12 टॉपिक उसको कैसे वेटेज होगा। सो चांसेस आर वेरी हाई कि हर एक टॉपिक के अब की बार मुझे नहीं लगता कि किसी भी टॉपिक के 15 सवाल आने चाहिए, हर एक के 5 या 10 आएंगे। इंग्लिश के शायद या मैथ्स के साथ 15 आ जाएं। अदरवाइज माय असेसमेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेस। इस अजम्पशन के साथ मत जाना कि उसके कितने सवाल आ सकते। हो सकता है RTI के 3 सवाल आए, हो सकता है RTI के तुम्हारे 8-9 सवाल आ जाए। सो डू नॉट गो विद दैट अजम्पशन। अनदर थिंग इज दादर ने एक और चीज पूछा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि माइंड में हम क्या सोच के जाएं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सो गाइस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ये चीज वेरी करेगा, ये चीज वेरी। इनफैक्ट मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। जो EPFO का एग्जाम 2017 में हुआ था, कि सेम एग्जाम हुआ, पहले एक बार हुआ, फिर अगली बार हुआ। पहले वाले में जिसने 120 में से 58 सवाल किए उसका कट ऑफ पार हुआ, दूसरे वाले में जिसने 120 में से 78 किए उसका पास हुआ। तो मतलब 20 नंबर ज्यादा बढ़ गया। एंड वी रिमेंबर दैट, ये आई थिंक EPFO का था, क्योंकि जब 2017 में जो EPFO का पेपर हुआ उसमें जो अकाउंटिंग के सवाल थे वो CA एडवांस लेवल के भी थे। मतलब CA के 3 लेवल होता है, बेसिक, इंटरमीडिएट या कुछ, उसमें एडवांस लेवल के भी सवाल थे। लेकिन जो 21 में एग्जाम हुआ उसमें अकाउंटिंग के सारे सवाल 11-12 लेवल के थे। सो डिफिकल्टी लेवल कैन वेरी। ये सोच के नहीं जाना है कि मैं 50 करूंगा, 60 करूंगा, 70 करूंगा तो मेरा कट ऑफ पार होगा। अपना मैक्सिमम वहां करना है, जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। कट ऑफ में मैंने तो बता दिया, एक एग्जाम में एक बार 120 में से 58 ठीक और नेक्स्ट बार 120 में से 78 ठीक, इतना ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। इज दैट ओके अर्जुन? यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलो ओके। सो लेट अस स्पीक टू नाउ रवि रंजन। यस रवि, स्पीक अप। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी रवि, बोलो। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया है कि वीडियो आप लोग प्रोवाइड करेंगे जो टॉपिक्स कवर नहीं हुए हमारे, और किसी कैंडिडेट ने आपसे हेलो? पूछा भी था कि आप बुकलेट। हेलो हाँ। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ यस सर, जैसा कि आपने बोला कि सर आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोज हमें प्रोवाइड करेंगे। मैंने एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, तो जो 4 टॉपिक्स हाँ। नए हैं हमारे लिए, तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोज का एक्सेस देंगे।
इसके अलावा सर किसी ने पूछा था आपसे कि बुकलेट भी प्रोवाइड करेंगे आप लोग, तो क्या बुकलेट या वीडियो या बुकलेट वीडियो दोनों ही प्रोवाइड करेंगे आप लोग? बुकलेट या वीडियो, योर चॉइस। ओके सर, दोनों में। ओके। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, क्या वहाँ पे ये चारों टॉपिक्स कवर ऐड किए जाएंगे क्या इनके क्वेश्चंस? ऐड हो चुके हैं रवि, देखो खोल के ऑलरेडी हो चुका है वो सब चीजें, तो पढ़ाई शुरू करो बस। ओहो, ओके। हाँ ओके सर। और सर जो करंट अफेयर्स था वो हमें फरवरी तक का प्रोवाइड किया गया था, तो हाँ इसके बाद भी करंट अफेयर आने के चांसेस हैं क्या? क्यों, बिल्कुल है चांस, हम देंगे। सो इस मंथ के एंड तक हम लोग भेज देंगे तुम्हें। कब तक का? मई तक का। हाँ, उस पर हमारी टीम काम कर रही है अभी जी। ओके सर, बस यही पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्पीक टू संजय नाउ। या संजय, संजय आचार्य। ओके, आई थिंक लेट अस स्पीक टू अरिजीत कुंडू नाउ। अरिजीत बोलो। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी अरिजीत बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर, ओबी का बुक तो सर बहुत मोटा है सर, तो क्या करें सर, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अगले 2-3 दिन में तो वीडियो डालेंगे क्या क्या छोड़ सकते हो, ठीक है? अगले 2-3 दिन के अंदर डालेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। और सर फ्रीडम मूवमेंट के लिए सर पूरा जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा सर? देखो वैसे तो मैं ये बात बताता हूँ तुम्हें कि ना, कि यूपीएससी वाले लोग तो करते ही हैं। जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें ना एक मेडिवल से भी एक सवाल आया हुआ था, कुछ अकबर के टाइम से। हालांकि सिलेबस में लिखा हुआ था सेम फ्रीडम मूवमेंट। एक दो सवाल तो वो आगे पीछे करेंगे ही, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, राइट? यस सर, यस सर। कंसीडरिंग द टाइम दिस कैन ओनली बी डन, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। सो लेट अस स्पीक टू नाउ। अब नेक्स्ट कौन है? ब्रिजेश, राइट? यस ब्रिजेश बोलो। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर, मैं ब्रिजेश कुमार बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी ब्रिजेश, हाँ जी बोलो। यस ब्रिजेश बोलो। सर अभी तो करना चाहता हूँ कि हाँ जी, ब्रिजेश बोलो। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हेलो सर, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हाँ जी हुआ ब्रिजेश हूँ, बोलो। और जो आपके वीडियोज है वो इंग्लिश में, तो मतलब मुझे ठीक है। किताबें भी इंग्लिश में है, तो क्या वो मैं मतलब हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल है? मतलब मैं समझ सकता हूँ चीजों को बढ़िया से? अब देखो, ये तुम्हें देखना होगा। इसका मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। वेबसाइट पे जाओ, सर। ईएसआईसी वाले पेज पे जाओ, वहाँ कई सारा डिफरेंट सब्जेक्ट का रिकॉर्ड वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है? उसमें एक दो चला के देख लो, उसमें समझ में आता नहीं आता, ट्राई करो एक बार, ठीक है? वहाँ कई सारा वीडियो पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है। ये मान लो पेज डिप्टी डायरेक्टर का, ठीक है? वेबसाइट पे जाओगे, ऐसा पेज दिखेगा, करेक्ट? ईएसआईसी का। हाँ हाँ। इस पे यहाँ देखो, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन वीडियोज। इसमें से मैनेजमेंट वाला वीडियो चला के देख लो, तुम्हें अपना फिगर आउट करना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। ओके, सो लेट अस स्पीक टू। अब इसके बाद कौन है? सुमिति जैन। ओके, या सुमिति प्लीज स्पीक अप। सुमिति जैन। ओके, सो लेट अस स्पीक टू बैशाखी अमीन। बैशाखी अमीन, यस प्लीज स्पीक अप। बैशाखी अमीन। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो करंट अफेयर्स की बाकी बुकलेट्स रह गई थी वो क्या आप डिस्पैच से भेजेंगे हमें? अभी जो तुम्हें शायद फरवरी तक का मिल गया, राइट? हाँ जी। हाँ, तब जो फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जो 3 महीना करंट अफेयर हमें करना है, उसके लिए हम इस मंथ के एंड तक विल सेंड यू अ पीडीएफ थ्रू ईमेल। ठीक है जी। हाँ, ओके। एनीबॉडी एल्स? सो गाइस विल वाइंड अप फॉर टुडे नाउ। अगर इसके बाद भी कुछ पूछना है, फील फ्री, गेट बैक टू अस। मेरा तुम सबको यही सजेशन है कि कंसीडरिंग द टाइम, मेक यूज ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। इससे तुम्हारा चीजें क्लोज होगी, ठीक है? Sir, I want to talk something. Hello. बोलो प्लीज बोलो। हाँ सर, मुझे करंट अफेयर्स का मिला है अप टू अक्टूबर, उसके बाद मुझे नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हमारी टीम को ईमेल कर दो, हम तुम्हें दोबारा भेज देंगे, ठीक है? ईमेल कर दो एक, लेकिन हाँ, एक ईमेल कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।